شعرنامہ کی ادبی دنیا میں آپ سبھی کا استقبال۔ والدہ کو زندگی کی جاگیر کہنے والے ساحر لدھیانوی کی زندگی میں وہ وقت بھی آتا ہے جب شاعر کو والدہ کی چوڑیاں فروخت کرنی پڑیں۔ پروفیسر جمیل کھٹانہ کی قلم سے ساحر کی زندگی کے سفر کے وہ قصے جو ان کی عمر رواں سے روبرو کراتے ہیں۔ عبدالحی ساحر لدھیانوی 8 مارچ 1921 کو چودھری فضل محمد گوجر ضلع دار کے یہاں پیدا ہوئے۔ بچپن لدھیانہ میں گزرا۔ 10 تک تعلیم خالصہ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں داخلہ لیا جہاں سال 4 تک پڑھتے رہے۔ کالج یونین کے سیکریٹری اور صدر بھی رہے۔ سیاست کا شوق تھا اس لیے سزا بھی پائی۔ والد صاحب جاگیردارانہ اطوار ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ ساحر کے ابتدائی کلام کو کسی رسالے میں جگہ نہ ملی۔ ان کی شاعری میں فیض، مجاز، جوش اور اقبال کا اثر تھا۔ معاشرتی ناہمواری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے معاشرے کے مظلوم طبقات کی حمایت اور انسان سے دوستی ساحر کی شاعری کا خاص موضوع تھی۔ لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ بازار جاتے تو کتابیں خرید کر لاتے۔ والدہ کہتی کہ بڑے ہو کر پڑھنا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ کتابیں ماموں سے پڑھوا لوں گا۔ میٹرک میں پہنچے تو ساحر نے شعر کہنے شروع کر دیے۔ معروف نعت گو شاعر حافظ لدھیانوی جو کالج کے زمانے کے دوست تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساحر لدھیانوی کا گھرانہ علمی و ادبی نہ تھا، نہ شاعری ورثے میں پائی تھی، نہ ہی خوبصورت ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ ماحول نے انہیں بے اطمینانی اور بے کیفی دی۔ معروف ادبی شخصیات اور صحافی حمید اختر کے بقول ساحر میرے بچپن کے دوست تھے، ان کی زندگی میں بڑے بڑے انقلاب آئے لیکن فن کی حد تک وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مسلک سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے۔ ساحر کے والد نے اوپر تلے 8 شادیاں کیں لیکن اولاد نرینہ سے محروم رہے۔ ساحر چھوٹے تھے کہ ان کے والد نے ان کی ماں کو طلاق دے دی اور اس عظیم عورت نے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ کر بیٹے کی پرورش کے لیے اپنی باقی عمر قربان کر دی۔ ریلوے لائن کے گھر کے قریب ساحر رہتے تھے۔ ریلوے کی آمد و رفت سے ان کا آرام و سکون متاثر ہوتا تھا۔ ساحر کے ایک ماموں الہ آباد اور دوسرے اڑیسہ میں تھے، انہوں نے ساحر کی کفالت کی۔ ساحر لدھیانوی کی شخصیت بڑی پرکشش تھی۔ حافظ لدھیانوی کے بقول ساحر کا قد لمبا، منہ پر چیچک کے خفیف نشان، ناک لمبی، آنکھیں بہت خوبصورت، دراز پلکیں جنہیں وہ ہاتھوں سے درست کرتے تھے، مخروطی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی، نرم گفتگو، لہجے میں محبت اور پیار کی خوشبو جس سے کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان سے ایک بار مل کر دوبارہ ملنے کو جی چاہتا تھا۔ لدھیانہ کے رہنے والے رام راج کی صاحبزادی مہندر چودھری ان کی ہم جماعت تھیں۔ دونوں کے دل مل گئے۔ وہ ساحر کی سوچ فکر کی مداح ہو گئیں اور خود بھی حسین اور چنچل تھیں۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک بار ساحر دل بے قرار کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے گاؤں بھی جا پہنچے۔ پھر اچانک وہ بیمار ہو گئی۔ انہیں تپیدق تھی، چل بسیں، اور ان کی موت کا دکھ ساحر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں چھپا کے رہ گئے۔ ساحر کی دوسری محبت ہرندر کور تھیں۔ چھٹیوں میں وہ لدھیانہ سے فیروز پور جانے والی لائن پر ان کے گاؤں چلے گئے اور نہ جانے کیسے زندہ سلامت واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور میں اسلامیہ کالج میں داخلہ لے لیا۔ لاہور علم و ادب کا مرکز تھا۔ یہاں پر گوپال متل، عبدالحمید بھٹی، ہری چندر حفیظ ہوشیار پوری، کرشن چندر حفیظ جالندھری، عابد علی عابد، احسان دانش، محمد بن تاثیر اور صوفی تبسم جیسے شاعر موجود تھے۔ انہوں نے جلد ہی کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ چودھری فتح الدین نے جب اپنے قبیلے کا رسالہ گوجر گزٹ جاری کرنے کا پروگرام ترتیب دیا تو ان کے باپ اور دیگر لوگوں نے ساحر کا نام مدیر کے طور پر تجویز کیا، لیکن ساحر نے انکار کر دیا۔ ان کو اپنے باپ سے شدید نفرت تھی۔ ایک بار آمنا سامنا ہوا تو بڑے خوبصورتی سے کنارے ہو گئے۔ اولاد نرینہ نہ ہونے پر جب بات کورٹ تک پہنچی تو جج نے ننھے ساحر سے پوچھا کہ کس کے ساتھ رہو گے۔ اس پر ساحر نے والدہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ساحر کو آغا حشر کے پورے ڈرامے یاد تھے۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے جائیداد میں حصے کے لیے مقدمہ دائر کیا اور مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ ساحر نے یہ زمین 1940 میں فروخت کر دی۔ ادب لطیف کے مالک چودھری نذیر احمد کی تنخواہ سے زیادہ ساحر چائے پانی پر خرچ کر دیتے تھے۔
साहिर अदब लतीफ़ के मुदीर बन गए, जो कि एज़ाज़ की बात थी। वो इनकलाब और इनकलाबी शायरी का दौर था। इनकलाबी नज़में इस रिसाले में शाया होती थीं। तरक्की पसंद तहरीक भी ज़ोरों पर थी। वो इस तहरीक से वाबस्ता थे। अहमद नदीम कासमी, अल्ताफ़ मशहरी, गोपाल मित्तल, कृष्णचंद, आरिफ अब्दुल मतीन, अहमद राही और इस्मत चुग़ताई इस तहरीक में पेश थे। इस माहौल ने साहिर के नज़रियात व ख़यालात को मज़ीद जिला बख्शी। लाहौर में अनारकली के बाहर नगीना बेकरी और मोची दरवाजे के बाहर मंजिल होटल पर उनका आना जाना होता था। आगा शोरिश काश्मीरी अंग्रेज़ दुश्मन तहरीक में सफ़े अव्वल में शुमार होते थे। अनारकली में पैसा अखबार गली में उनके किराए के ठिकाने पर साहिर का अक्सर क़याम होता था। ताजमहल नज़्म ने साहिर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाहौर ही में उनकी शायरी का पहला मजमुआ तलखियाँ शाया हुआ, जिससे उनकी शोहरत पूरे बरे सगीर में फैल गई। वो सवेरा के मुदीर बने। अमृता प्रीतम से साहिर की मुलाकात एक मुशायरे में हुई और फिर साहिर की नई मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। बकौल अमृता प्रीतम, मैं 21 बरस की थी जब ख्वाबों में बसा हुआ ये चेहरा इस धरती पर देखा और ज़बान से बेसाख्ता ये शेर निकला। उम्रा दे कागज़ उत्ते इश्क तेरे अंगूठा लाया, अब कौन हिसाब चुकाएगा। सुधा मल्होत्रा जैसी मशहूर हस्तियां भी उनसे मंसूब रहीं। दूसरी आलमी जंग में जब अंग्रेज़ों ने धड़ाधड़ फ़ौज में भर्ती की तो बड़े बड़े नामी गिरामी कामरेड फ़ौजी ओहदों पर फायज हो गए, लेकिन साहिर अपनी सोच और नज़रिए के पक्के थे। वो किसी के तहत काम नहीं कर सकते थे, अपनी फ़िक्र से वाबस्ता रहे। साहिर लाहौर से दिल्ली चले गए और शाहरा के मुदीर हो गए। तक़सीम के वक्त उनकी वालदा मुहाजिरीन के हमरा लाहौर चली आईं। माँ ही साहिर की कुल कायनात थी, चुनांचे वो माँ की तलाश में लाहौर के लिए रवाना हो गए। फिर न जाने क्या ख्याल आया कि रास्ते में उतर गए और वही ट्रेन सिख और हिंदू बवालियों के हाथों तय कर दी गई। यूं अल्लाह करीम ने साहिर लुधियानवी को बचा लिया, शायद इसलिए कि अभी उन्होंने बहुत कुछ करना और बहुत कुछ देखना बाकी था। कमर अजनालवी लिखते हैं कि मेरी और साहिर की मुलाकात 1948 में निशात सिनेमा एबट रोड लाहौर के सामने वाली बिल्डिंग में हुई। वो वहाँ अपनी वालदा के हमरा क़याम पजीर थे। पड़ोस में इब्ने इंशा का घर था, जहाँ पुराने जानने वालों ने उनका जीना मुहाल कर दिया था। उनको शाही किले के किस्से कहानियाँ सुनाए, उन्हें बताया कि यहाँ मज़दूरों, रहनुमाओं और हक़ की बात करने वालों के लिए जगह नहीं, जिसमें शोरिश काश्मीरी पेश थे। जून 1949 में उन्होंने लाहौर में रिहाइश के लिए मकान भी अलॉट करवा लिया, लेकिन नाचार उन्हें इस माह वापस जाना पड़ा। वो शदीद गर्मी में वॉल्टन एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ से हिंदुस्तान चले गए। बम्बई में बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्हें शदीद जिद्दोजहद करनी पड़ी। एक अदीब के बकौल वहाँ पर मधोक और संतोष जैसे हिदायतकार उनको कुर्सी पेश करते और एहतरामन खड़े हो जाते, लेकिन उनकी शायरी को फिल्मों में जगह देने पर तैयार नहीं होते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि साहिर को वालदा की सोने की चूड़ियाँ फ़रोख्त करनी पड़ी, और तब कृष्णचंद्र की कहानियों के खुशखत लिखकर उन्होंने 150 रुपये का मुआवजा कमाया। इन हालात में भी वो दोस्तों के खातिर जम के किया करते थे। वो साहिर जो दिन के 11 बजे तक सोते रहते थे, अब सुबह 7 बजे जागते और फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते। इसी जद्दोजहद में 1.5 बरस बीत गया। वालदा ने कहा, इलाहाबाद चले जाओ। वालदा उनकी हर तरह से दिलजोई करती थीं। पहली फिल्म का गाना साहिर ने लिखा, जबकि इब्राहिम जलीस और हाजरा मसरूर ने उसके मकाले लिखे। एक दिन मोहन सहगल ने कहा, SD बर्मन से मिलो, वो नई सलाहियतों के कद्र करने वाले मौसीक़ार हैं। साहिर दूसरे दिन ग्रीन होटल मुलाकात के लिए पहुंच गए। साहिर ने गाना लिखा, SD बर्मन ने धुन बनाई। वो गाना था, ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रुत है जवां तुम हो कहाँ कैसे बुलाएं। साहिर ने फिल्म नौजवान के लिए 2 गीत लिखे। फिल्म प्यासा से उनका उरूज शुरू हुआ। फिल्म रिलीज़ हुई तो वो बुलंद मर्तबे पर फायज हो गए। इसके बाद फिल्म बाजी के लिए नगमा लिखा, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। यहाँ से साहिर की मांग में इजाफा हो गया। साहिर कृष्णचंद के बगले 4 बंगला को छोड़कर चेन्नई निवास में मुंतकिल हो गए और साथ ही फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के सदर भी बन गए। उन्होंने मुतअद्दिद सदाबहार गाने लिखे, जिन्होंने साहिर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया।
साहिर गाने लिखते वक्त किन मराहिल से गुजरते थे, इसके बारे में उनकी मामूजात बहन अनवर सुल्ताना कहती हैं कि वे एक करनाक कैफियत से दो चार हो जाते थे। फिल्म के मुख्तलिफ शोबों में भी उनकी गहरी नज़र थी। साहिर एक सच्चा और खरा इंसान और शायर थे। उन्हें कुरान पाक की कई आयत मुबारक हिफ्ज़ थी और तर्जुमा भी याद था। वो चिड़ियों को बाग में जाकर दाना डालते थे, रमज़ान करीम में मुलाजमीन का खुसूसी ख्याल रखते थे, पुरानी फिजूल की रस्मों से उनको चिढ़ थी, इंसानों के दरमियान फ़र्क रखना उनको पसंद ना था और साइकिल रिक्शा जैसे इंसान खींचने वाली गाड़ियों से वो बहुत दूर रहते थे, उन पर कभी सवार नहीं होते थे। छोटे मुलाजमीन से हमेशा इज्जत से पेश आते थे। सिगरेट उनकी पसंदीदा थी। सफ़ेद क्रीम कलर के कपड़े पहनते थे। नाश्ते के दौरान अखबार, बीनी और तबसरे होते थे। ऑमलेट, पराठा और पूरियां मनपसंद खुराक थी। अनवर सुल्ताना की बहन सरवर सुल्ताना के बकौल जानवर भी साहिर से प्यार करते थे। वो घर में चिड़ियों को मक्खन लगी डबल रोटी खिलाते थे। साहिर की तसानीफ में तलखियाँ और हिंदी एडिशन परछाइयाँ, गाता जाए बंजारा, आओ कि कोई ख्वाब बुने शामिल हैं। फिर एक वो वक्त आया जब खालसा कॉलेज लुधियाना ने, जिसने साहिर को अपने अदारे से निकाल बाहर किया था, उसने 1970 में 7 साला तकरीबात मनाई तो साहिर लुधियानवी को गोल्ड मेडल दिया और उन्होंने ये नज़्म अपनी मादरे इल्मी के लिए लिखी। ऐ सर ज़मीन पाक के याराने नेक नाम, बासत खुलूस शायरे आवारा का सलाम। 1971 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री दिया। 1972 में आओ कि कोई ख्वाब बुने पर उर्दू अकेडमी अवार्ड, सोवियत एंड नेहरू अवार्ड 1973 में महाराष्ट्र स्टेट लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया। नेहरू पर लिखी साहिर की नज़्म सिटी पार्क करनाल में नेहरू की यादगार के नीचे कुंदा है। उसकी शायरी का कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। सिविल लाइन लुधियाना में एक सड़क 1975 में साहिर के नाम से मंसूब की गई। कश्मीर की बुलंद चोटियों पर एक फौजी चोटी का नाम भी उनके नाम से मंसूब है। साहिर ने वालिद की जायदाद में से एक कौड़ी भी नहीं ली। साहिर अपने वालिद की दूसरी बीवी सरदार बेगम के बेटे थे, जो कि लुधियाना की रहने वाली थी। साहिर जब 3 साल के हुए तो फजल मोहम्मद ने उनकी वालदा को तलाक दे दी। वालदा ने साहिर की परवरिश लुधियाना में ही रह कर के की। तकसीम बरे सगीर के बाद चौधरी फजल मोहम्मद गोजर फैसलाबाद जा बसे और यहाँ पर ज़मीनें अलॉट करा लीं। साहिर जब 1948 में वालदा को तलाश करते हुए लाहौर आए तो बाप ने पैगाम भेजा कि जागीर संभाल लो और मेरे पास आ जाओ। साहिर ने जवाब भेजा, मेरी माँ ही मेरी जागीर है। करीबुल मर्ग चौधरी फजल मोहम्मद गुजर अपने माजी को याद करके बहुत रोते थे और एतराफ़ करते थे कि साहिर की वालदा को तलाक देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। उनके इंतकाल के बाद ज़मीन 2 बीवियों को मिली। साहिर ने मुंबई के मरकज़ी इलाके में परछाइयाँ नामी इमारत जायदाद में छोड़ी। साहिर की वालदा सरदार बेगम 31 जुलाई 1976 को इंतकाल कर गई थीं। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद वो टूट गए और आर्ज़ क़लब में मुब्तला होने के बाद बहुत बदल गए थे और आखिरकार 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में 59 साल 7 माह 17 दिन जिंदा रहने के बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। साहिर अपने बारे में कहा करते थे, मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी जवानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी कहानी है। और अब चलते चलते साहिर के अदबी ख़जाने का वो मोती जो उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी याद महकाता रहेगा। साहिर लुधियानवी की नज़्म, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो के मगरिब में, अम्ने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिलमिलाती है। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोप धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो के हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर होती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है।